અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી. જય સદગુરુ જય જ્ઞાન. તત્વચર્ચામાં શ્રી અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પાના નંબર 27. વિચાર નોંધ 2 તારીખ 20/5/1957 સાંજે 7:30 વાગે. આ અહીંયા શ્રી શ્રી સર્વજ્ઞના શાસનમાં ખરેખર કોને જ્ઞાની કયા છે તે કહેવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ જેઓ પરમાર્થ જ્ઞાની નથી પરંતુ જ્ઞાની જેવા લાગે છે તેમનું પ્રરૂપણ. તો યથાર્થમાં જ્ઞાની કોણ છે અહીંયા બતાવવામાં આવે છે. પહેલાં તો જે નથી એનો બતાવવામાં આવે છે. ઘણા શાસ્ત્રોનો અને અનેક પ્રકારની વિવિધ વિદ્યાઓનું જાણપણું હોવા છતાં તે સર્વના સારભૂત હું આ શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ ગોચર સ્વચતુષ્ટયુક્ત આત્મા દેહથી અને સર્વ અન્ય જીવોથી તથા પરપુદ્ગલોથી ભિન્ન છું એવી યથાર્થ શ્રદ્ધા અને અનુભવ જેમને નથી અને તેના પરિણામે ક્વચિત પૂર્વ પુણ્ય યોગથી છટાદાર વક્તાપણો, વિવિધ પ્રકારના બાળતપ, મોટા મોટા શાસ્ત્રીય વિવાદો, કવિત્વપણો, ઘણી લોક માન્યતા વગેરેનો સદ્ભાવ હોવા છતાં પણ ભેદ વિજ્ઞાનથી રહિત હોવાને લીધે જેઓની પરિણતિ આત્માભિમુખ અંતર્મુખ નહીં થતી હોવાથી અને તેથી તેના પરિણામ સ્વરૂપ સ્વાનુભવના આનંદનો અસદ્ભાવ વર્તતો હોવાથી શ્રી શ્રી સર્વજ્ઞના શાસનમાં આવા જીવોને પરમાર્થે જ્ઞાનીઓ કહેવામાં આવ્યા નથી. જો પોઝિટિવથી નેગેટિવ લીધું છે. જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ બતાવીને પછી કીધું છે કે આમ જેના નથી તે અજ્ઞાની છે. તો કેટલી વાતો કીધી. ઘણા શાસ્ત્રોનો અને વિવિધ પ્રકારની વિદ્યાઓનું જાણપણ હોવા છતાં, એટલે
બુદ્ધિ લેવલ ઉપર ઘણો પ્રખર હોય, પણ તે સર્વના સારભૂત જ્ઞાન શું છે એ કે છે, હું આ શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ ગોચર સ્વચતુષ્ટય યુક્ત આત્મા દેહથી અને સર્વ અન્ય જીવોથી તથા પરપુદ્ગલોથી ભિન્ન છું. જો અહીંયા એક જોરદાર વાત કીધી છે, હું આ શબ્દ લગાવીને આખી દૃષ્ટિ સ્વ તરફ છે. હું શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ ગોચર, એમાં ચોપડીમાં લખ્યું હોય હું શુદ્ધ, હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે. તે એમને એમ કહેતા શીખે હું એક શુદ્ધ, પણ હું કોણ? આટલો જ ફરક. માત્ર શુષ્ક જ્ઞાની અને અનુભવ જ્ઞાનીમાં આટલો જ ફરક છે કે જ્ઞાનીને આત્મા એમ કહેતા જ પોતાનો આખો સ્વ છે એ ઉપયોગમાં ફરી વળે છે. અમૂર્ત ચૈતન્ય સત્તા છે એ એના ઉપયોગમાં ફરી વળે છે. હું कहता आ कोई, सॉरी हिंदी में बोलना है, हाँ अब तो धीमे धीमे आप सीख गए होंगे गुजराती. એટલે આટલો લક્ષ્ય કરવો, આટલો જ કરવાનો છે બસ, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. વારંવાર આ હું છું તે હું છું, અને હું ઉપર જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે હું આપણને કોઈ હાથ પગવાળી વસ્તુ ન દેખાશે. ये जो मैं है वो कोई हाथ पैर वाली वस्तु नहीं है, उसका कोई स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं, आकार प्रकार कुछ भी, मैं तो मैं हूं. और वो मैं आपको एक अनुभव दिखेगा, એટલે કીધું અનુભવ સ્વરૂપ, एक फीलिंग है वो बस. और वो कैसी फीलिंग है? तो शब्द लगाए नित्य, हमेशा रहने वाली फीलिंग, हमेशा रहने वाली अनुभूति. एक अनुभूति होती है बदलती रहती है हमेशा. वो कर्म के उदय के हिसाब से बदलती है, सामने वाले ज्ञेय पदार्थ के हिसाब से बदलती है. अभी मैं राजेश भाई को देखूंगा तो कोई उनका व्यक्तित्व की जैसी छाप है वैसी मेरी फीलिंग होगी, वो औदैहिक हिसाब से होगी सारी. एक फीलिंग होती है कांस्टेंट, कोई हो कि नहीं हो, और वो अपने अस्तित्व की अनुभूति है, वो पारिणामिक अनुभूति कहलाती है. और वो निरंतर धारा प्रवाह से चल रहा है, चैतन्य का प्रवाह, उसका अभाव कभी नहीं. और उसका प्रकट रूप मैं हूं, इसकी स्फुरणा. क्रोध के समय भी मैं हूं, मान के समय भी मैं हूं, नींद के समय में भी मैं हूं, जन्म के समय में भी मैं हूं, मृत्यु के समय में भी मैं हूं. ये मैं हूं की अस्थिर रूप की जो अनुभूति है वो कांस्टेंट अनुभूति है, ये वास्तविक अपना आत्मा है. बस उपयोग की धारा वहां नहीं जाती है, बदलती हुई अनुभूति के ऊपर उपयोग की धारा जाती है, इसीलिए वो उदय में जुड़ता है व्यक्ति. इसलिए कभी तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है, कभी बहुत अधिक दुखी हो जाता है,
ऐसे हर शोक में ही चलता रहता है उसका दिन भर। पर ये हर्ष और शोक, सुख और दुख, साता और असाता, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, इन सबसे ऊपर की वस्तु है और ये एकदम सामान्य है। जब हम समस्त जगत उदय उनके प्रति अत्यंत उदासीन हो जाएंगे, तब यह अनुभूति हमारे पास हमारे साथ हमेशा रहेगी। जब तक अपने को तथारूप उदासीनता नहीं आती है, तब तक यह अनुभूति हम प्राप्त नहीं कर सकते। सारा संसार का रस सूख जाए, आ जगत सोनाનું થઈ જાય તો પણ મારે કાંઈ મને ત્રણવત છે। क्या फर्क पड़ेगा इससे? हम जो भी वस्तुएं इच्छा करते हैं वो मिल जाएगी तो अपने अंदर क्या बढ़ जाएगा, और वो नहीं मिली तो अपने अंदर क्या घट जाएगा? बोलो। काल्पनिक संतुष्टि, मात्र काल्पनिक संतुष्टि। हमने जो चाहा था वो मिल गया, कल्पना थी पूरी हो गई, संतुष्टि हो गई। बड़ा कुछ नहीं, घटा भी कुछ नहीं, न घटता है न बढ़ता है, अगुरु लघु। ये हमेशा शेष बची हुई चेतना है जो सदैव रहती है। इसको अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए, बड़ी ही शांति से, प्रेम से और अत्यंत अनासक्त भाव से अपने सहज अस्तित्व को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो बिना कारण है, अनायास है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। बिना प्रयास के जो है, बिना कारण के जो है, जो सदैव है, मैं 1000 शब्द बोलूं, लाख शब्द बोलूं, तब भी जब तक दृष्टि वहां नहीं जाएगी तब तक सब फोक है, सब बेकार वस्तु है। और जिसकी दृष्टि वहां तक पहुंचती है उनको इन शब्दों में इतना आनंद आता है बहुत, क्योंकि इस शब्द से उसका भाव पकड़ में आता है। इसलिए तो सत्संग में रस किसको आता है पता है? सत्संग में रस आत्मा के रसिक लोगों को आता है। आत्मा का रस जिसको नहीं, उसको सत्संग में कभी रस नहीं आएगा, निरस्त आ जाएगी। हाँ, હું આખો દિવસ એક ને એક વાત કર્યા કરું છું, पर जो आत्मानुभव के रसिक हैं उनको आध्यात्मिक सत्संग बहुत अच्छा लगे, क्योंकि जैसे जैसे वो सामने वाले के शब्द निकलते वैसे वैसे उस शब्द के भाव की तरफ उसका लक्ष्य जाता है और वैसे वैसे उसको आनंद आता रहता है। क्या क्या जोरदार बात है। अनायास, अनायास का क्या मतलब होता है कीर्तन? अनायास। शुभम, अनायास। नरेश भैया, अनायास। जयेश भाई हैं? बिना कारण नहीं। यस, इसने बोला प्रयास किए बिना। आयास का अर्थ होता है प्रयास, और कोई प्रयास नहीं करो, प्राकृतिक, नेचुरल, जो पहले से ही है। निष्कारण का अर्थ होता है बिना कारण के, और अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के। उसी को नित्य कहते हैं। जो नित्य है उसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता और कोई कारण भी नहीं देना पड़ता उसको। वही
सहज, सहज, सह का मतलब साथ, ज का मतलब जन्म, साथ ही जन्म है, आगे पीछे नहीं है, साथ में ही जन्म है। तो पहले से ही जन्मा हुआ है, साथ ही जन्मा हुआ है, इसका मतलब वो अजन्मा है। निरावलंबन, जिसमें किसी और का अवलंबन नहीं है, अपने आप है, स्वाधीन, स्वयंभू। बहुत सारे अच्छे शब्द हैं, ऐसे ऐसे शब्द छाट करके अपने को बार बार भावना करनी चाहिए। मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनायास हूँ, मैं निष्कारण हूँ, मैं निरारंभी हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, और कुछ नहीं आए तो मैं हूँ। ये सबसे बड़ा मंत्र है। ये सब मैं नहीं विचारूं तो भी मैं हूं। मैं ऐसा विचार नहीं करूं कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तो भी मैं तो वही हूं। इन शब्दों में क्या रखा है? जो कुछ है वो अनुभव में है, पर वर्तमान में हम विचार से भाव की तरफ जाते हैं। इसलिए पहले से विचार करें, जैसे विचार करेंगे वैसे हमारे भाव बनेंगे। इसलिए पहले विचार में लेना पड़ता है आत्मा को, परमात्मा को। तो शुद्ध, नित्य, अनुभव स्वरूप, स्वचतुष्टय युक्त। स्वचतुष्टय मतलब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप हूं मैं, अथवा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य रूप हूं मैं। स्वचतुष्टय। स्व कहते ही स्वद्रव्य आया, स्व कहते ही अब सारे द्रव्य चले गए, मैं आया। स्व क्षेत्र कहते ही अपने ही असंख्यात आत्म प्रदेश आए और नहीं। स्वकाल कहते ही अपना ही स्व समय आया पर नहीं। और स्वभाव कहते ही अपना ही ज्ञान दर्शन स्वभाव आया, अन्य का ज्ञान दर्शन नहीं। ऐसा हो। खुली आंख से करे तो अच्छा है, नहीं तो बंद आंख से बार बार ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जो मैं दिखता नहीं हूं फिर भी जो अनुभव में आ रहा हूं वो मैं हूं। हम अपने आप को दिखते नहीं हैं, दिखते हैं परंतु फिर भी अनुभव तो हो रहा है। बस ये सतत अनुभूति चल रही है, वो मैं हूं और वो ही मैं हूं। फिर उसको अलग अलग नाम दो, आत्मा का ना तो आत्मा कहो, शुद्ध के ना तो शुद्ध कहो, द्रव्य के ना द्रव्य कहो, तत्व के ना तत्व कहो, पदार्थ के ना तो पदार्थ कहो, परमात्मा के ना तो परमात्मा। ये तो सब नाम हैं। नामों में क्या रखा है? मुख्य वस्तु उस चीज की, उस वस्तु का संवेदन, ये मुख्य वस्तु है। कंडीशन, कौन सी कंडीशन? प्रकाश भाई ने भजन में बोला, भवसागर सब सूख गया है। ये बात, भवसागर सूख जाना चाहिए। पर अभी भी हमारा भव संसार हरा भरा है, तो भाई भगवान नहीं। दुनिया की किसी भी वस्तु में से अगर अपने को प्रसन्नता मिलती है, आनंद आता है, तो समझ जाना हम भगवान से अभी दूर हैं। किसी से आनंद नहीं। भगवान को मिलने के जो साधन हैं उसमें कदाचित आनंद आए, बाकी किसी में नहीं। क्यों इसमें आनंद आता है? क्योंकि इसमें हमको ये है कि इससे भगवान मिलेंगे, इसलिए उसमें आनंद है, बाकी तो उसमें भी आनंद नहीं। भगवान को मिलने से कौन कौन से साधन हैं?
सत्संग, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, ध्यान, तप, त्याग, संयम, ये सब भगवान को मिलने के साधन है। स्वयं तो वो आनंद रूप नहीं है, परंतु इससे उस भगवान में दृष्टि जाती है, इसलिए आनंद है। वो करने से अपना आनंद आएगा। इसलिए वो कैसे करना? पंडित जी ने अच्छी बात कही, सब काम कैसे करना अपने को? आनंद से करना। परंतु आपको अगर पहले से ही आनंद है तो क्यों करेंगे? जैसे यूं कोई कहे कि आप स्वाध्याय आनंद से करना, अब पहले से ही आनंद है तो स्वाध्याय क्यों करें? हम तो दुखी हैं इसलिए स्वाध्याय कर रहे हैं, हम दुखी हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं, हम दुखी हैं इसलिए ध्यान कर रहे हैं, हमको वो करके आनंद पाना है। अब पहले से ही आनंद है तो काहे को किया जाए? बात समझ में आ रही? कोई कहे कोबा में जाना, कैसे जाना? आनंद से जाना। किसी को पहले से ही आनंद है तो यहां क्यों आएगा? वहां धर्म है, वो हमको पहले से ही धर्म है। जो वस्तु हमारे पास पहले से ही है तो फिर उसको पाने के व्यर्थ प्रयास क्यों किया जाएगा? बात समझ में आई? हाँ, इसलिए सभी साधन आनंद से करना, इसके बजाय सभी साधन निष्काम भाव से करना। आनंद से तो कर ही नहीं सकते हैं, आनंद हो तो करें ना, हम तो वो उसके लिए तो हम वो करने जा रहे हैं। वो पहले कैसे हो सकता है? काल्पनिक भले आप आनंद मानो, उसमें वो कल्पना ही रहेगी आपकी। निष्काम भाव रखो कि उससे मुझे किसी भी प्रकार की लौकिक चाह नहीं है। बस ऐसा करके अगर आप कोई भी साधन करोगे तो उसका पारमार्थिक फल मिलेगा और वो साधन करते ही आनंद आएगा आपको। स्वाध्याय में आनंद क्यों आता है पता है? स्वाध्याय के पहले आनंद नहीं होता है, स्वाध्याय करते करते आनंद होता है। क्यों होता है पता है? जैसे जैसे हम उस स्वाध्याय में शब्दों के ऊपर अनुचिंतन करते हैं, उसका भाव भाषण होने लगता है, इससे आनंद आता है। और वो नहीं करोगे तो कैसे आनंद आएगा? भक्ति से आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो उससे अपने भाव उल्लसित होते, उससे आनंद आता है। भक्ति के पहले थोड़ी आनंद आएगा। साधन के साथ साथ आनंद होता है, साधन करने के पहले नहीं होता है। पहले तो क्या होता है? उस साधन को निष्काम भाव से करने का संकल्प होता है कि मुझे भक्ति करके, मुझे सेवा करके, मुझे स्वाध्याय करके, मुझे ध्यान करके किसी भी लौकिक कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे उसको न सुख चाहिए न दुख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा करके आप कुछ भी निष्काम भाव से साधन करोगे, उस साधन में आपका क्योंकि निदान नहीं है, इसलिए आपको पारमार्थिक आनंद आएगा। किसी भी प्रकार की इच्छा से नहीं करना, इसका नाम आनंद से करना है। समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का निदान रख करके, इच्छा रख करके नहीं करना, इसका नाम आनंद से करना है, निष्काम भाव से करना। क्योंकि सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा करने में अपने को आनंद आता है कि नहीं आता है? कब आएगा पता है? जब हम उस सेवा का कोई फल नहीं चाहेंगे। किया, छुट्टी, कोई इच्छा ही नहीं, वहां से आनंद आता है। आनंद हमेशा अनिच्छक निष्कामता का है। और वो अगर आपके पहले से ही है तो आपको साधन करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए मुनिराज हमेशा निष्काम रहते हैं, उनको कोई साधन करने की भी जरूरत नहीं। और नीचे की अवस्था में तो उनको साधन इसलिए करते हैं कि अभी इच्छाएं हैं, वो साधन करते करते उसके विकल्प छूट जाते हैं।
उसके विकल्प छूट जाते हैं, इसलिए आनंद आता है। भक्ति करते करते अपने को घर के विकल्प, दुकान के विकल्प, इसके सब छूट जाते हैं, इसलिए आनंद आ रहा है वहां। जितना जितना निर्विकल्पता, निश्चिंतता, निष्कामता, उतना उतना आनंद, उसका संबंध इसी से। निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया जाए। ध्यान भी ऐसा किया जाए, ध्यान करेंगे मुझे अब कुछ चाहिए नहीं बस, और फिर अपने स्वरूप का चिंतन करो। अगर आप कुछ भी कामना लेकर के ध्यान का प्रयोग करेंगे तो आप कितना भी चिंतन करेंगे आपको ध्यान का आनंद नहीं आएगा। अगर ऐसा भी किसी को कामना है कि मेरे को भी आत्मा का अनुभव करना है, वो फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए, तो भी नहीं आएगा। आपको मुझे किसी का अनुभव नहीं करना है, मुझे तो जैसा स्वरूप है वैसा चिंतन करना है बस। क्यों करना है? स्वभाव है, स्वभाव को प्रकट करना है, इसलिए उसकी भावना करनी है। सुखी थोड़ी होना, सुख तो उसी में है, उससे क्या सुखी होंगे हम? सुख तो उसमें पहले से ही है, बस भावना नहीं कर रहे हैं तो दबा हुआ है, आ जाता है। कल्पित समता में, काल्पनिक संतुष्टियों में नहीं उलझना। अपने किसी को केम छो, मजामा छी, काम इतने सारे दुखों को लेकर के उठ रहे, कहाँ मजे में भाई, दिन भर इतने सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, फिर भी कहते हैं मजामा, परम आनंद है। कहने का नहीं होता ये परम आनंद। परम आनंद तो तुम बोल भी नहीं सकते हो। प्रामाणिक रहा जाए, शुष्क ज्ञान पनाए सही आता है। हम वस्तु बराबर समझते नहीं हैं, तथारूप अंदर दशा नहीं होती है, तथारूप अंदर संवेदन नहीं होता है, और उसके पहले ही हम मान लेते हैं कि हम ऐसी दशा में, हम ऐसे आनंद में हैं, ऐसे ये हैं। तो कृपालु देव ने उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, अति परिणामी पणो। ये साधना मार्ग का बड़ा बाधक है, अति परिणामी पण, कि जो परिणाम, जो दशा आपके अंदर नहीं है वो आप अभिव्यक्त कर रहे हो, अथवा आपको कल्पना से ऐसा लगता है। कल्पित समता जिसको कहा ना 254 में, कि आपको वास्तव में उस दशा का पता ही नहीं है कि उसमें क्या संवेदन होता है, क्या है, इसलिए आपको कल्पना से ऐसा लगता है, और आपको लगता है कि मैं बहुत ऊंचे पहुंच गया, बस अब तो अपने कुछ चाहिए ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया मोक्ष। ऐसा करके वो अति परिणामी पने से उसकी गति रुक जाती है। तो बराबर कि मैं कौन सी दशा में हूं। शुरुआत में भूमिका में 6ठे गुण स्थान तक तो उसको अभी इच्छा रहती है। कौन सी इच्छा रहती है? अभी 10वें गुण स्थान तक लोभ होगा। कौन सा लोभ होगा? तो क्या 10वें गुण स्थान में उसको ऐसे लोभ होता है, मेरे को अच्छा घर चाहिए, स्वर्ग मिल जाए, ऐसा कोई लोभ होता है? देखो, चौथे और पहले गुण स्थान में तो सारे लौकिक भोग विलास की वस्तुओं का लोभ होता है। चौथे और 5वें गुण स्थान में वर्तमान जीवन को चलाने की वस्तुओं का लोभ होता है। सम्यक दृष्टि को और शावक जो पंचम गुण स्थान में होता है उसको भी साधन सामग्री का लोभ है। एक घर हो तो अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, स्कूल हो तो अच्छा है, थोड़े पैसे हो तो अच्छा है। ये होगा कि नहीं होगा 5वें गुण स्थान वालों को? ऐसा थोड़ी है कि आपको सम्यक दर्शन हो गया इसलिए आपको कुछ इच्छा नहीं है। अभी सारी इच्छाएं वो सब हैं, परंतु वो किसके लिए? वर्तमान भव को चलाने के लिए है ये सब। आगामी भव की उसकी कोई इच्छा नहीं होगी। आगामी में उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि अब मैं स्वर्ग में जाऊं, अथवा मैं बाद में ये हो जाएगा, मैं बाद में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए उसको लोभ रहता है कि
वो किसी स्कूल में पढ़ाएगा तो कहेगा जरा थोड़ा भाई हमारा वेतन વધારો तुम। वो ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? कंपनी में कहीं काम कर रहा है तो ऐसा कहेगा, शाबाश भाई अभी इतने से काम नहीं चलता है और आप दूसरों को बढ़ाता है, मेरा भी वेतन बढ़ाओ आप। ये लोभ तो 5वें गुण स्थान तक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 6ठे गुण स्थान तक कौन सा लोभ होता है? फिर मुनि बन गया, अब इसका लोभ नहीं। इस पर्याय को चलाने का भी कोई लोभ नहीं है। अब उसको क्या लोभ है? अबे तो जल्दी से जल्दी अपने केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना धर्म में लोग जुड़े तो अच्छा है। इसलिए उसको ऐसा लोभ है कि ये मेरे पास जितने शिष्य हैं उनको साधना बराबर सुचारू रूप से चले और सारे ज्ञान ध्यान तप में लगे रहें, यही उसको इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। इसके बाद आगे अबुद्धिपूर्वक केवल ज्ञान पाने की वगैरह की, ये अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक इच्छाएं रहती है। इसके बाद कुछ नहीं होता। ऐसे गुणस्थान की परिपाटी के हिसाब से सब समझना चाहिए। कोई आचार्य होगा तो कोई उसके पास जाए ऐसे और ऐसा उपदेश देंगे कि नहीं कि भाई क्यों ऐसे पड़े हुए हो, संयम धारण करो, दीक्षा लो, तो क्या उसको उसके शिष्य बढ़ाने का लोभ है? उसको उसके शिष्य बढ़ाने का लोभ नहीं है, सामने वाले के कल्याण का इच्छा है। इस जीव का कल्याण हो जाए तो अच्छा ही। अपने यहाँ कोई आता है कोबा में तो फालतू में क्यों घर गृहस्थी के चक्कर में भाई ज़्यादा समय रुको, आपका लोग तो संख्या बढ़ाने का है कि उसके कल्याण का है? संख्या बढ़ाने का है तो आप पहले गुण स्थान। अगर आपको ऐसा है कि हमारा आश्रम में थोड़ी संख्या बढ़ जाए इसलिए आप यहाँ रहो वगैरह, और उसको और भी प्रलोभन देंगे आपको, ये चलो आपका स्वाध्याय रखते हैं, चलो आपकी भक्ति रखते हैं, किस लिए? जोड़ने के लिए। ये तो पहले गुण स्थान वाला व्यक्ति है। अथवा आपको ये सुविधा देंगे, अथवा आपको ये कर देंगे, अथवा आप यहां रहोगे तो आपके बहुत सारे काम अपना भी निपट जाएंगे। ये सब तो पहले गुण स्थान वाला लोभी व्यक्ति है। आपका कल्याण है, इसलिए घर में राग द्वेष के ज़्यादा निमित्त होते हैं। यहाँ रहोगे तो कम से कम दिन भर स्वाध्याय भक्ति ध्यान होगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ रुको, ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें कोई स्वार्थ ऐसा उस गुण स्थान में होगा, निश्चित रूप से होगा, और वो बड़े वैसा भी होगा। यहाँ लोग आए वैसा भी होगा। क्यों होगा? इसलिए तो है, इसलिए तो बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया बताओ? ये तो होगा, परंतु उसका कोई अपना नहीं। ये हर गुण स्थान अनुसार व्यवस्थाएं हैं। लोग गुण स्थान अनुसार समझते नहीं है, इसलिए क्या का क्या फिर लेते, कौन से गुण स्थान में कौन से भाव, कौन सी प्रकार की परिणतियां, ये सब चीजें होती हैं। अपने बात कुल मिला करके शुष्क ज्ञानी की चल रही थी कि उसको इस प्रकार का संवेदन नहीं है कि ये मैं अनुभव स्वरूप चैतन्य आत्मा। बाकी सब है, बाकी शास्त्र का ज्ञान भी है, बाल तप भी करता है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे भाषण भी देता है, सब कुछ कर रहा है, पर अपने स्वरूप का अभिज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि बहुत किसी और की बात चल रही है। तो कहते हैं उसके कारण से क्या हुआ है? कवित्वपणो घणी लोक मान्यता का मतलब इतने पूर्व पुण्य योग थी छटादार वक्तापणो। आप बहुत अधिक शास्त्र अध्ययन करोगे और बहुत अधिक आप बोलोगे तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाओ। कोई भी चीज करते करते हो जाती है। जैसे अभी मैं
किसी को यहाँ बोलने में बड़ा संकोच होता है, किसी को होता है स्टेज पर स्टेज फियर, बड़ा भय होता है, किस किस को होता है, हृदय को होता है, पोपट भाई को होता है, सबको। अभी आप 6 महीने तक लगातार बोलो रोज, आपकी इतनी जबरदस्त पकड़ आ जाएगी उस बोलने पर, और आपका अपना आप क्षोभ जागेगा। आपको लगेगा 6 महीने पहले पोपट भाई और आज के पोपट भाई में बहुत अंतर है। क्यों? वो करते करते होता है ऑटोमेटिक। ये वक्तापना बोलते बोलते हो जाता है। आप बहुत अभ्यास नहीं करो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, बोलते बोलते अपना आप हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। एक बार डर निकल गया हो जाता है, इसमें क्या है? ये कोई बहुत बड़ी वस्तुएं नहीं होती है। विविध प्रकारना बाळ तप, मतलब बिना सोचे समझे, आत्मा के लक्ष्य के बिना जितने भी तप किए जाते हैं उसे बाल तप। मोटा मोटा शास्त्र विवादों, बड़ी बड़ी सूक्ष्म चर्चाएं में उलझे रहना, ये सब होना अच्छी बात है। ये सब ज्ञानियों में भी होती है। कोई भी ज्ञानी, और मुख्य रूप से तो वर्तमान में तो ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, होता है। इस पंचम काल में तो कोई ज्ञानी ऐसा नहीं होता है कि जिसका क्षोभक्षम ज्ञान नहीं हो। पहले जमाने में ऐसे होते थे कि बहुत सीधे साधे लोग होते थे, ये चीजें बहुत नहीं होती थी, तो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान में तो यहाँ ऐसे ही जीव पैदा होते हैं जो पूर्व का आराधक होता है, तो उसको जन्म से ही बहुत अच्छा क्षोभक्षम ज्ञान मिलता है, जन्म से ही कोई अच्छा कवित्व मिल जाता है, जन्म से ही को, और फिर वो अध्यात्म में लगता है तो हो जाता है। इसलिए अभी वर्तमान के जितने भी ज्ञानी महात्मा के रूप में फेमस है, उन सबको देख लेना, वो बहुत अच्छे तो वक्ता हैं, कोई कोई बहुत अच्छे कवि भी हैं, कोई कोई अच्छे तपस्वी भी हैं, सब गुण होंगे, बहुत अच्छे गाते भी हैं, बहुत अच्छे सारे गुण होंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व भव के आराधक ही कोई किसी दुर्घटना के कारण से इस काल में आ जाते हैं, तो उनके पास पहले से ही ऐसी सारी प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं और फिर कुछ भी नहीं आता और फिर आत्मा को पकड़ लिया, ऐसे बहुत होते हैं, वो फिर प्रगट में आते भी नहीं है। तो ये सब होना कोई बुरा ही नहीं है, होते हैं, ज्ञानियों में भी होंगे। घनी लोक मान्यता, लोग मानेंगे भी, पसंद भी करेंगे सबको। ज्ञान प्रकट होने तक की दशा में कितने गुण प्रकट होते हैं, और वो गुण धीमे 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 उनकी सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? स्वाभाविक, बहुत सौ के पास नहीं आएगी, पर जितना है उसने आसपास तो फैलेगी, उसकी जरूर फैलेगी उसकी। परंतु ये उसका व्यक्तित्व नहीं है। इससे उसकी कभी तुलना करनी कि उसको कितने लोग मानते हैं, उसको कितना अच्छा बोलना आता है, कितना अच्छा गाने आता है, कितना कवित्व है, ये सब उसका कोई नहीं होता है। अभी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, सुनना आप लोगों को ऐसा लगे जैसे गणधर बोलते हैं, इतना जोरदार बोलते हैं, वो अपने को इतनी फिट बिठा देते हैं वो बात, वो उनका व्यवसाय। किसी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पहला आता था, शिव खेड़ा, नाम सुना? शिव खेड़ा, उसको उपाधि थी ऐसे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक। उसकी वो एक कंपनी के लिए काम करता था। उसकी एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक, पढ़ने जैसी है, जीत आपकी। वो किसके लिए देता था? कंपनी में आपका ये प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको ग्राहक को कैसे आकर्षित करना है, इसके लिए उसके पास तकनीक पर ऐसा, जैसे कि वो अगर अध्यात्म क्षेत्र में लगाओ तो वो बहुत अपने उपयोगी है। वो सबसे पहले तो एक छोटी सी कहानी बताता, और फिर उस कहानी का सार निकाल करके फिर वो आगे उसको अपने किस किस प्रकार से उसके मन को जीतना है, सामने वाले को मन को जीतना है और अपने वश में करना है, वो सब होता था।
अपने अपने ऊपर लगाए तो अपना पूरा मन अपने कंट्रोल में आ जाता है। उसके कारण से वो बहुत चलता था पहले। गांव गांव में प्रसिद्धि हो गई थी उस समय, आज से 20 साल पहले की बात है। પરંતુ क्या होता है कि વગેરેનો સદભાવ હોવા છતાં ભેદ વિજ્ઞાનથી રહિત હોવાને લીધે જેઓની પરિણતિ આત્માભિમુખ અંતર્મુખ નહીં થતી હોવાથી, તેથી તેના પરિણામ સ્વરૂપ સ્વાનુભવના આનંદનો અસદભાવ વર્તો હોવાથી શ્રી શ્રી સર્વજ્ઞના શાસનમાં આવા જીવોને પરમાર્થે જ્ઞાનીઓ કહેવામાં આવ્યા નથી। भाई अंतर्मुख वृत्ति नहीं होती है, इसलिए बाहर की तरफ जाती है दृष्टि, बाहर की तरफ दृष्टि जाती है, इसलिए ये सारे राग द्वेष पैदा होते हैं। अपने आप में संतुष्टि मिलती नहीं है, इसलिए अब ये करें, अब वो करें, अब ये करें, ऐसा बहुत प्लानिंग आते रहते हैं मन में, यार अभी मज़ा नहीं आ रहा, अभी तो कुछ और करें। और जिसको इस निष्क्रिय चैतन्य का आनंद आ गया है, वो उसको दिमाग में कोई प्लान करना पड़े तो उसको दिमाग गर्म हो जाता है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए शांति रहती है। केवल शुद्ध का चिंतन करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, और फिर जो टाइम बचे उसमें दूसरों की सेवा करो, बस इतना काम साधक के लिए, आत्मानुभवी साधक के लिए क्या है, बस इतना। अपना ज्ञान ध्यान तप करो और जितना टाइम बचे किसी की सेवा कर दो, अपना मन नहीं लगता है तो। इससे अधिक अगर किसी को कुछ करना है तो वो श्री श्री सर्वज्ञ के शासन से बाहर है। उनको अंदर गिना नहीं, विपरीत दृष्टि जीव है, भले बाहर से कितने भी हो। इसलिए मर करके भी अपने को आत्मा का निराकुल आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, हो प्रणमो पद तेवर तेजय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।